So I want to talk to you about the work of the Holy Spirit in your life. तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आपके जीवन में पवित्र आत्मा के काम के बारे में। Yeah. And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ that at the end of your life, आपके जीवन के अंत में you should be satisfied. आपने तृप्त होना है। You should say like Jesus, आपने यीशु के जैसे कहना है, it's finished. पूरा हुआ। You will be a blessed person आप आशीषित व्यक्ति and होंगे you will become a blessing to people. और आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनोगे। So to do this, तो ये करने के लिए Jesus gave us the Holy Spirit. यीशु ने हमें पवित्र आत्मा दिए है। Yeah. And last week I spoke to you और पिछले हफ्ते मैंने आपसे बात and I की told you Holy Spirit is God और मैंने आपको कहा कि पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर है and He is a person और एक व्यक्ति भी है and He is inside you. और वह आपके अंदर है, He is with you. वो आपके साथ है। And there are times He comes upon you. और ऐसे समय भी आते हैं जब वो आपके ऊपर आते हैं। So you have this great person called the Holy Spirit inside you. तो आपके अंदर ये महान व्यक्ति आपके अंदर रहते हैं And He is going to help us. और वो हमारी मदद करने And वाले if हैं। we take His help, और यदि हम उनकी मदद लेंगे life will become exciting. तो जीवन जो उत्साहपूर्ण हो जाएगा, Life will become colorful. जीवन में रंग भर जाएगा, Life will become victorious. जीवन जो है वो विजयी हो जाएगा। Can I hear an amen there? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? You know, your actual Christian life starts not on Sunday. It's not Sunday. आपका असली मसीह जीवन जो है रविवार को शुरू नहीं होता, It's Monday to Saturday. वो सोमवार से शनिवार तक। And I pray और मैं प्रार्थना करता from हूँ Monday सोमवार से to Saturday, शनिवार तक you should win. आपने जीतना है, You should win. आपने जीतना है। I pray your failures will become less मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी असफलताएं कम होती and जाए your victories will become more and more in the name of Jesus. और आपकी विजय ज्यादा और ज्यादा होते जाए यीशु के नाम में। So last week I told you, number one, the Holy Spirit will transform your life. पिछले बार मैंने आपको कहा था पहला नंबर कि पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदल देंगे। Yeah. Then number two, I told you, फिर दूसरा नंबर मैंने आपसे कहा था He brings conviction. वो एहसास लाते हैं। Today, number three, आज तीसरा नंबर, this Holy Spirit, ये पवित्र आत्मा He will help you to worship God. वो आपकी मदद करेंगे प्रभु की आराधना करने के लिए। Doing spiritual things आत्मिक चीजें करना is not possible without the Holy Spirit. आत्मिक चीजें करना पवित्र आत्मा के बिना संभव ही नहीं है। नहीं है, zero. It's zero, zero, zero. शून्य, संभव ही Zero, नहीं। zero. So if you want to pray, तो यदि आप प्रार्थना करना Holy चाहते हो Spirit has to help you. तो पवित्र आत्मा ने आपकी मदद करना जरूरी है। You want to worship, आप आराधना करना चाहते हो Holy Spirit has to help you. तो पवित्र आत्मा ने आपकी मदद करना जरूरी है। Anything spiritual, कुछ भी आत्मिक काम करना है Holy Spirit has to help you. तो पवित्र आत्मा ने आपकी मदद करना जरूरी है। The moment you are able to do spiritual things well, जिस क्षण जो है आत्मिक चीजें आप अच्छे से करने के लिए शुरू करते हो, somebody has helped you. किसी ने तो आपकी मदद की है, Somebody is helping you. कोई तो आपकी मदद कर रहा है। So you need to get aware of it. तो आपने जो उसके विषय में ना सतर्क होना है And you should acknowledge और आपने वो मानना है this person, ये व्यक्ति the Holy Spirit, पवित्र आत्मा He is my great वो helper. मेरे सबसे बड़े सहायक है। Ephesians chapter 5, इफिसियों 5 अध्याय verse 18 to verse 20. वचन 18 से 20। 18, 19, 20. So there are three verses over here. यहाँ पर 3 वचन है। It says, वचन कहता है, verse 18 says, वचन 18 कहता है, be filled continuously with the Holy Spirit. निरंतर पवित्र आत्मा से भरे रहो। Yeah. Be full of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरे रहो, That means overflow. इसका मतलब भर के उमड़ना। Now, अभी after this, in verse 19 and verse 20, इसके बाद वचन 19 और 20 में there are 5 statements made. 5 वाक्य कहे गए। So we'll not go to the scriptures, we'll go to the statement. हम वचन में नहीं जाएंगे, वाक्यों में जाएंगे। When you're full of the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा से भरे होते हो, some things begin to happen. कुछ तो होना शुरू होता है। Spiritual activity is not your effort. आत्मिक काम जो है आपका प्रयास नहीं है। You say yes to God, आप प्रभु को हाँ कहते but हो, it's not your ability. लेकिन वो आपकी क्षमता नहीं It's है, not your desires. वो आपकी इच्छाएं नहीं He है। gives you वो desires. आपको इच्छाएं देते He हैं, gives you वो ability. आपको क्षमता देते हैं। Okay, in these 2 verses. इन 2 वचनों में Number 1, पहला नंबर, you will begin to sing joyful songs to the Lord. आप प्रभु के लिए आनंद से भरे जो है गीत गाना शुरू करोगे। Yeah. How many of you, sometimes you are singing joyfully? कभी क्या आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी आप जो आनंद से गाना शुरू कर देते हो? Yeah.
Even bathroom you're singing. बाथरूम में भी गाते हो, Kitchen you're singing. किचन में भी गाते हो, On the road you're singing. रास्ते पर भी गाते हो, Driving you're singing. गाड़ी चलाते हुए गाते हो। Everybody's thinking, what's happening? सब लोग सोच रहे क्या हो गया है, Holy Spirit is working. पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। Next statement. अगला वाक्य, You will speak scriptures to one another. आप एक दूसरे से वचन से बात करना शुरू करते हो। Somebody is going through a difficult time. कोई तो मुश्किल समय से गुजर रहा You है, tell them, आप उनसे कहते हो don't worry, brother. चिंता मत करो The भाई, Lord will not leave you. प्रभु आपको छोड़ेंगे नहीं। Yeah, heaven and earth will pass away. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, But the word of God will stand, brother. लेकिन प्रभु का वचन हमेशा बना रहेगा भाई। Don't be anxious. चिंतित मत हो, Pray. प्रार्थना करो, God will help you. प्रभु आपकी मदद करेंगे। You keep talking scriptures to one another. आप एक दूसरे से वचन से बात करते रहते हो, Yeah, and you also wonder from where scripture is coming. और आप भी सोचते हो वचन आ कहां से रहे। Number 3, तीसरा, singing psalms भजन गाना, as praise to the Lord. प्रभु के लिए स्तुति के रूप में भजन गाना। Yeah, you don't know to sing. Like I can't sing. Like Reuben, he when he sings, all the angels come. जैसे रूबेन गाता है मैं नहीं गा सकता, क्योंकि जब वो गाता है सारे स्वर्गदूत आते हैं। When I sing, all the crows come, but God also comes. लेकिन जब मैं गाता हूँ सारे कौवे आते हैं, लेकिन साथ में प्रभु भी आते हैं। Yeah, so I'm not a singer, तो मैं गायक नहीं हूँ, but I like to be a worshipper. लेकिन मुझे आराधक बनना अच्छा लगता है। You don't need to be a singer. आपको गायक होने की जरूरत You नहीं need है, to be a worshipper आपने of the आराधक होना है प्रभु का, living God. जीवित परमेश्वर का आराधक। अच्छा, do you know when you don't sing in sur, आपको होता है जब आप सुर में नहीं गाते हो, people leave and go, right? लोग वहां से निकल जाते हैं, बरोबर। But God is so patient. लेकिन प्रभु बहुत धीरज धरे रहते हैं। He is not after your sur, he is after your heart. वो आपके सुर पर ध्यान नहीं देते, आपका दिल वो देखते हैं। Singing psalms as praise to the Lord. प्रभु के लिए भजन गाना स्तुति के रूप में, This is the work of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का काम है। Yeah. There was a period in my life, the Holy Spirit, the Lord told me, I want you to sing me every day 10 psalms before you begin the whole day. ऐसा एक समय था मेरे जीवन में जब प्रभु ने कहा तू तेरा पूरा दिन शुरू करने से पहले तू हर दिन मेरे लिए 10 भजन गाना। कोई कोई साम सिर्फ 2 वर्ष है, वो ठीक चलता है, पता है। लेकिन कोई कोई साम पता है 150 वर्ष है एक में। वो साम कौन सा है पता है आपको? 119। जिस दिन वो साम आएगा मैं बोलता है हे देवा। बट गॉड ऑल्सो लाइक्स टू हियर। लेकिन प्रभु को भी सुनना बहुत अच्छा लगता है। I pray मैं प्रार्थना you करता will हूँ give joy to God every day of your life in the name of Jesus. आपके जीवन के हर दिन आप प्रभु को आनंद दोगे यीशु मसीह के नाम में। Yeah. Number 4. चौथा नंबर, Yeah. Singing spontaneous. Spontaneous means your heart, from your heart, God gives you words. आपके दिल में से प्रभु आपको शब्द देते हैं। Yes. आपको पता है कभी कभी आप किचन में काम करते हो, सडनली मुंह में से कुछ अलग ही गीत गाता है जो कभी किसी ने गाया नहीं, लेकिन प्रभु आपको शब्द देता है और वो आप बार 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 गाते Amen. रहते हो, वही ये है। वाह। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ you will have beautiful songs like this in the name of Jesus. आपके ऐसे सुंदर गीत आप गाओगे यीशु के महान नाम में। Yeah. ये जब स्पॉन्टेनियस सॉन्ग्स आते हैं ना, वो शायद शब्द तेरे अलग हो गए, तेरे अलग हो गए, तेरे अलग हो गए, वो तेरा जो रिश्ता है ना प्रभु के साथ, उसके द्वारा बाहर आने वाला है। या नंबर 5, पांचवा, ऑलवेज बीइंग थैंकफुल। हमेशा धन्यवादित रहना। दिन कितना भी अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हमें पता है मेरा प्रभु मेरे साथ है। आमीन। He is always there. वो हमेशा मेरे साथ है। You know, life sometimes becomes very difficult. जीवन कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, It becomes very difficult. बहुत मुश्किल हो जाता है। Maybe you have a child who is not doing well. शायद आपका ऐसा बच्चा है जो अच्छा कर नहीं रहा है, Maybe you have gone through some failure. शायद आप कुछ असफलता से गुजरे हो, Maybe people are sick in your life, in your family. शायद आपके परिवार में लोग बीमार हैं, Yeah, maybe you lost your job. शायद आपकी नौकरी खो दी आपने, But still, लेकिन फिर भी in the midst of all that, ये सब के बीच में if you're still thankful, अगर आप फिर भी धन्यवादित हो who helped you? तो किसने मदद की आपकी? Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने। It's not you. वो आप नहीं हो, Somebody is helping you. कोई तो आपकी मदद कर रहे हैं, Somebody is helping you. कोई तो आपकी मदद कर रहे हैं, And his name is the Holy Spirit. और उनका नाम है पवित्र आत्मा। So for you to become a worshipper, तो आपके लिए आराधक बनना मतलब oh, you need the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा की मदद की जरूरत है।
And who is God looking for? और प्रभु किसको ढूंढ रहे हैं? Not a rich man, अमीर व्यक्ति को नहीं, not a talented man, कलावंत व्यक्ति को नहीं, not a beautiful man. सुंदर व्यक्ति को नहीं, But my Bible tells me लेकिन मेरी बाइबल मुझसे कहती है God is looking for worshippers who will worship Him in spirit and in truth. प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढ रहे जो आत्मा और सच्चाई में उनकी आराधना करेंगे। God is very rested when He meets a true worshipper. जब प्रभु सच्चे आराधक को मिलते हैं ना तो उनको बड़ा विश्राम महसूस होता है। Yeah. I really pray. मैं सच में प्रार्थना करता हूँ। Do you know there's a person called David in the Bible? आपको पता बाइबल में दाऊद नाम का एक व्यक्ति है, A man after God's heart. प्रभु के दिल के पीछे चलने वाला व्यक्ति। उसने गलती किया क्या? बहुत बड़ा गलती की। यस, और 9 महीने वो प्रभु को मिला नहीं। So did God miss him? तो क्या क्या प्रभु ने उसको मिस किया? Big time. बहुत। Does God miss you? क्या प्रभु ने आपको मिस किया? Good time. Big time. बहुत। The Holy Spirit पवित्र आत्मा prepares you to be a worshipper. वो आपको तैयार करते हैं आराधक बनने के। Yeah. Somebody asked me, what will I do in heaven? किसी ने मुझसे कहा स्वर्ग में मैं क्या करने वाला हूँ? Number 1 is you will be a worshipper. पहला नंबर आप आराधक होंगे। Yeah. Make worship your lifestyle. होने तो आराधना जो है आपकी जीवन शैली बन जाए। Yeah. Learn to say thank you at the end of every hour. होने तो हर एक घंटे के बाद जो है धन्यवाद देना आपकी जीवन शैली बन जाए। Yeah. Because the moment after every hour you say thank you, you are becoming aware that actually the Lord is leading me. आप जब हर घंटे के बाद जब धन्यवाद देना शुरू करते हो ना तो आप सचेत हो रहे हो और ये कह रहे हो कि प्रभु मेरी अगुवाई कर रहे हैं। Yeah. And you are actually separating yourself for God every hour of the day. और दिन के हर एक घंटे में आप जो है अपने आप को प्रभु के लिए अलग कर रहे हो। Yes. It's easy. You can do it. ये आसान है, आप कर सकते हो। Yeah. Number 2, the word of God. प्रभु का वचन You should begin to love it. आपने उससे प्यार करना शुरू करना है। Maybe till today you did not like history, geography, maths. शायद आज तक आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स अच्छा नहीं लगा होगा, But this book, लेकिन ये जो किताब है ना, I pray मैं प्रार्थना करता हूँ from your head, आपके दिमाग से it should get into your heart. वो आपके दिल में जाना है। This is my prayer for you. ये मेरी प्रार्थना है आपके लिए। And that's why one of the reasons Jesus gave us the Holy Spirit. और इसीलिए अनेक कारणों में से एक कारण है यीशु ने हमें पवित्र आत्मा And दी I है। really pray this 5 months you will be a heavy eater of the word of God. और मैं सच में प्रार्थना करता हूँ ये आने वाले 5 महीने जो प्रभु के वचन में से आप भारी रूप से खाने वाले व्यक्ति होंगे। And I pray you that word will make you strong. और मैं प्रार्थना करता हूँ वो जो वचन है आपको बलवान बनाए, Yeah, it'll make you strong. वो आपको बलवान बनाए। Even the enemy says इसके साथ पंगा मत लो, ये बहुत शत्रु भी बोलेगा इसके साथ पंगा मत लो। Okay. So the Holy Spirit will guide you into all truth. तो पवित्र आत्मा जो है सारी सच्चाई में जो है आपका मार्गदर्शन करेंगे। John 16:13. यूहन्ना 16 में 13 Jesus said, यीशु ने कहा the Spirit of truth. सत्य का आत्मा। Yeah, Holy Spirit has been given a lot of names, and one of the name is He's called the Spirit of truth. पवित्र आत्मा को अनेक नाम दिए गए लेकिन उनमें से एक नाम है वो सत्य का आत्मा है। And He says like this, और ऐसा कहा है this Spirit, ये जो आत्मा है ना He will bring you to the truth. वो आपको सच्चाई के पास लाएगी And He will make you to partake of the truth. और आपको वो सत्य में जो है भाग लेने लगाएगी। Yeah. Bible, if you don't read, your soul will be so weak. बाइबल यदि आप नहीं पढ़ोगे तो आपका प्राण बहुत बहुत कमजोर होगा। But I pray, लेकिन मैं प्रार्थना करता your हूँ soul will be a strong soul. आपका प्राण मजबूत प्राण होगा, Very strong. बहुत मजबूत। Maybe till today you have not really read the word of God. शायद आज तक आपने सच में प्रभु का वचन अच्छे से पढ़ा नहीं है, But I'm believing लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूँ that the Lord will give you a strong appetite for the word of God. कि प्रभु के वचन के लिए परमेश्वर आपको अच्छी मजबूत भूख देंगे। Yeah. Some of you will begin to read 10 chapters in a day. आप में से कुछ लोग जो है 10 अध्याय एक दिन में पढ़ना शुरू करोगे। People will say, what's happening? लोग पूछेंगे क्या हो रहा है? Your hunger is growing तुम्हारी भूख बढ़ रही है for the word of God. प्रभु के वचन के लिए। It's like food for your soul. वो आपके प्राण के लिए भोजन के समान बन गया है। Let me tell you 4 things about truth. सत्य के बारे में आपको 4 चीजें बताने दो। The Roman governor who ordered that Jesus should be put on the cross, रोमन गवर्नर जिसने आदेश दिया था कि यीशु को क्रूस पर लटकाना है, he asked Jesus, उसने यीशु से पूछा
What is truth? सच्चाई क्या है? गूगल करके देखो, गूगल आपको बताएगा सत्य क्या है। वो बताने के बाद तू ही कंफ्यूज हो जाएगा। फिलॉसफी इज नॉट ट्रुथ, फिलॉसफी जो है वो सत्य नहीं है, फैक्ट इज नॉट ट्रुथ, वास्तविकता सत्य नहीं है। ट्रुथ इज अ पर्सन। सत्य एक व्यक्ति है। नंबर 1, पहला नंबर, जीसस इज द ट्रुथ। यीशु सत्य है। John 14 verse 6, यूहन्ना 14 अध्याय वचन 6, Jesus said, यीशु ने कहा, I am the truth, मैं ही सत्य हूँ, I am life, मैं ही जीवन हूँ and I am the way. और मैं ही मार्ग हूँ। So truth is not some philosophy. Somebody said something and सत्य किसी ने कुछ कह दिया वैसा कुछ नहीं है, no. It's a person. वो एक व्यक्ति है। How many of you have seen a building being constructed? कितने लोगों ने बिल्डिंग बांधी जाते हुए देखा है? Okay, तो बनाने के बाद ये स्ट्रेट है क्या, वो देखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? प्लम लाइन यूज करते, और क्या यूज करते? अरे बाबा, दे विल यूज अ नाइस स्टिक विच इज वेरी ट्रू. They will put it to see if there is any gap, if any टेढ़ापन is there. You can see it. हमारे जीवन में टेढ़ापन है क्या, ये देखने के लिए खुद मत पूछो और खुद मत सोचो या दूसरों को मत पूछो। प्रभु का वचन खोलो, उसमें वो तुझे बताएगा तू टेढ़ा है या तू सीधा है। आमेन, आमेन। नंबर 2, दूसरा नंबर, Holy Spirit is the truth. पवित्र आत्मा सत्य है। So the person who is sitting inside you तो जो व्यक्ति आपके अंदर बैठे हुए हैं, is the truth. वो सत्य है। We are like this. हम ऐसे हैं, And the one who is sitting inside us is. और जो हमारे अंदर बैठे हुए ऐसे हैं। And when this one sees this one, और जब वो ये इसको देखता है, he has a big job to do. उनको बड़ा काम होता है करने के लिए। Holy Spirit straight. पवित्र आत्मा सीधे। What is the job? काम क्या है? टेढ़े को सीधा करना है। टेढ़े को सीधा करना है। I really thank God. मैं सच में प्रभु को धन्यवाद देता I हूँ। really thank the Holy मैं Spirit सच में पवित्र आत्मा को धन्यवाद that देता He हूँ took the challenge to come and live inside us so that He can make the tedas straight in Jesus' name. उन्होंने उस चुनौती को लिया और उन्होंने ठहराया कि मैं जाकर वो टेढ़े के अंदर रहूंगा और वो टेढ़े को मैं सीधा बनाऊंगा यीशु के नाम में। So if the Holy Spirit, टेढ़ा हो जा, हाँ, is trying to say, हिलना नहीं, हाँ, यदि पवित्र आत्मा कहने की कोशिश कर रहे हैं, सीधा हो जा, सीधा हो जाओ, सीधा हो जा, सीधा हो जाओ, सीधा हो जा, सीधा हो जा, ओके, अंदर अंदर कह रहा है, तो हमें लग रहा है ये कौन बात कर रहा है, ये कौन बात कर रहा है, हम बोलेंगे दुष्ट आत्मा मेरे पीछे हो जा। Okay, that's why you need something where the Holy Spirit can take you and tell you, तू टेढ़ा है, मुझे काम करने दे। इसीलिए ऐसी एक चीज की आपको जरूरत है जहां पर पवित्र आत्मा आपको ले जाए और कहे तू टेढ़ा है, मुझे काम करने दे। So number 3, तीसरा नंबर, the word of God is the truth. प्रभु का वचन सत्य है। Yeah, that's the truth. वो सत्य है। And I want to tell you, और मैं आपसे कहना चाहता the हूँ, enemy will fight against you that you should not open the Bible. शत्रु जो आपके खिलाफ जो है लड़ाई करेगा ताकि आप बाइबल खोलो ही But नहीं। the moment you open the Bible, लेकिन जिस क्षण हम बाइबल खोलोगे, the Holy Spirit will take you to the truth. पवित्र आत्मा आपको सत्य की ओर ले जाएंगे। Yeah. And I pray every day, let the Holy Spirit take you to the truth. और मैं प्रार्थना करता हूं उन्हें तो हर दिन पवित्र आत्मा आपको सत्य की ओर ले जाए। Yeah. Otherwise, you'll become dull. नहीं तो आप मंद हो जाओगे, You'll become confused. आप गड़बड़ी से भरे व्यक्ति हो जाओगे, You will become hazy in your thinking. आप आपके सोच में जो है हलचल मचने वाले व्यक्ति हो You'll जाओगे। say, what to do, what to do. आप कहोगे क्या करना है, क्या करना है। No. Do what God says. जो प्रभु कहते वो करो, Do what the Bible says. जो बाइबल कहती वो करो। John 17:17. यूहन्ना 17:17, Your word आपका is वचन the truth. वो सत्य है। So even if the Holy Spirit leads you to a man, that man will open the Bible and tell you this is what it is. यदि पवित्र आत्मा किसी जन के पास भी आपको लेके जाए तो वो जन जो है वचन खोल के आपको बताएगा ये सत्य है। Yeah. Now, अभी I am praying मैं प्रार्थना कर रहा हूँ for all of you आप सबके लिए that you will get a deep hunger for God's word. कि आपको जो है गहरी भूख मिलेगी परमेश्वर के वचन के लिए। I am praying मैं प्रार्थना कर रहा हूँ that Holy Spirit will guide you to the truth. कि पवित्र आत्मा जो है आपका मार्गदर्शन करेगी सच्चाई में। What is the truth? वो सत्य क्या है? Bible. बाइबल है। I pray Bible, you will love it. मैं प्रार्थना करता हूँ बाइबल से आप प्यार करोगे।
If you love the Bible, यदि आप बाइबल से प्यार you करोगे love Jesus. तो आप यीशु से प्यार करते हो। If you read the Bible every day, अगर आप हर दिन बाइबल पढ़ते हो, not as a religious activity, धार्मिक कार्य के रूप में नहीं, but as a joy, लेकिन आनंद के रूप में, as a grace to meet God, प्रभु को मिलने के अनुग्रह के रूप में, then I want to tell you, you're doing very, very well in the name of Jesus. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो यीशु के नाम में, And keep doing it. और करते रहो। और कभी कभी क्या होता है ना, बाइबल पढ़ने में तकलीफ होता है। अगर बाइबल पढ़ने में तकलीफ होता है ना, बाइबल सुनना शुरू करो। यस पास्टर आई एम वेरी बिजी। पास्टर मैं तो बहुत व्यस्त व्यक्ति हूँ। हाँ, ज्यादा बिजी मत होना, ज्यादा बिजी मत होना, क्योंकि तू बहुत पतला हो रहा है आत्मा में। तू यीशु ने क्या कहा पता है? मत्ती 4:4 में, मनुष्य कैसा पराठा से नहीं जीता है, प्रभु के मुंह में से जो वचन आ रहा है वो, उससे आप जीते हो। आमेन आमेन। If we are not having that appetite to read the word of God, you should know you are sick. यदि आपके अंदर वो प्रभु के वचन पढ़ने की भूख नहीं है तो आपको ये पता होना कि आप बीमार हो। आप बीमार हो, कुछ तो ठीक नहीं है। अच्छा दवाई लूं क्या पास्टर? हाँ, क्या दवाई लेना? कुछ नहीं, प्रभु के पास आओ, कहो मुझे पता नहीं प्रभु क्या हुआ है मेरे साथ, लेकिन कुछ तो लफड़ा हो गया है, मेरे सिस्टम में लफड़ा हो गया कुछ तो। आई डोंट नो योर प्रॉब्लम, मुझे आपका समस्या पता नहीं है, आई डोंट नो योर सिकनेस, आपकी बीमारी मुझे नहीं पता बट है, इफ यू आर डूइंग वेल, लेकिन यदि आप अच्छा कर रहे you हो will have a hunger to read the word of God. तो आपके अंदर जो प्रभु के वचन को पढ़ने की भूख होगी। You will rejoice when you read the word of जब God. आप प्रभु का वचन पढ़ोगे तो आप आनंद लोगे उसका। अच्छा, खाना खाने के बाद आप क्या बात करते हो बताओ? खाना कैसा था? सिंपल, but you are celebrating what you have eaten, correct? लेकिन जो आपने खाया उसका आप उत्सव मनाते जा रहे हो, Because you have enjoyed it, right? क्योंकि आपने आनंद लिया उसका। I pray मैं प्रार्थना करता you हूँ will enjoy the word, because the word is the Lord himself. May the Lord be your treasure, may the Lord be your food, may the Lord satisfy you deeply in the name of Jesus. होने तो जब आप वचन पढ़ो तो वचन में जो आप जो प्रभु खुद है उनको खाओ, वो आपका भोजन बने, वो आपका खजाना बने, और आप उनके प्रेम में गहराई से पड़ जाओ यीशु मसीह के नाम में। So when the Holy Spirit begins to lead you to the word of God, तो जब पवित्र आत्मा प्रभु के वचन में आपको ले जाने के लिए तैयारी करते हैं, जो टेढ़ा है ना वो सीधा हो जाता है। आमेन। You are not the truth, आप सत्य नहीं हो, but लेकिन you become true. आप सच्चे बनते हो। That's the job of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का काम है। जब हम स्वर्ग में जाने वाले हैं ना, प्रभु चाहता है कि उसकी दुल्हन सत्य बन जाए। आमेन। और जब सच अंदर आता है ना तो दो चीज बाहर जाने वाला है, एक है नहीं झूठ और दूसरा है नहीं धोखा। यस। झूठ और धोखा, प्रभु उससे बहुत नफरत करता है। आई रियली प्रे मैं सच में प्रार्थना करता हूँ, 2 things we should overcome: दो चीजों पर हमने जय पाना है, lie झूठ and deception. और धोखा। आपको पता है धोखा क्या है? हम जब सच देखते हैं ना तो हमें लगता है ये झूठ है, और जब हम झूठ देखते हैं ना हम बोलते हैं नहीं 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 ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच। उसे कहते हैं धोखा। यस। और मेरी ये प्रार्थना है कि हम धोखे में पकड़ा ना जाए, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है पवित्र आत्मा हमें मदद करे, वचनों के द्वारा हमारा टेढ़ापन जो है वो सीधा करे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। And may you and I be a joy unto the Lord. और होने तो आप और मैं प्रभु के लिए आनंद का कारण बने।